Well, hello guys, my name is Sushant Sushi. In today's video, we're gonna talk about emotional management. Emotional management कैसे की जाती है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अजय किलेदार। ही इज़ लाइक अ सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। इनका ग्रेट एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, इमोशंस के साथ, आई वुड स्पेसिफिकली फॉर दिस टॉपिक। शी इज़ अ गुड पर्सन फॉर दिस टॉपिक आई थिंक। सो इनको मैंने बुलाया है, तो लाइक मारो यार, एंड प्लीज लाइक मारो क्योंकि ही इज लाइक अ टू बिजी पर्सन। उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो इनके लिए लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो एंड तक देखो। यानी कि 2 मिनट देख लिया और छोड़ दिया, पूरा एंड तक देखो इस वीडियो को और शेयर कर दो क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। Well, welcome guys. So we have Mr. Ajay Kiledar with us. Well, hello sir, Hello, and good thank you morning. for coming. It was, I know you were too busy, super busy. You took some time for us, and thank you for coming a lot. Thank you for calling me also. Okay, so my first question is like कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इमोशनल, मतलब वो इमोशनली किसी के रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक्सेप्टेशंस की वजह से या किसी भी कोई भी सिचुएशन की वजह से वो ब्रेकअप हो जाता है उनका। फिर वो ब्रेकअप होने का बुरा लगता है, फिर वो उस कंडीशन में वो खुद को कैसे हैंडल करे इमोशनली एज पर यू। Very good question to start with. Yeah. See, this is very common with all the human beings and especially with youngsters. In Yes. this age group, we come up with breakups. ये एज में होता ही है ना सबका, प्यार व्यार मोहब्बत सब कुछ। So उसमें ब्रेकअप भी एक पार्ट है। So you know what, when such things happen, what happens to you? It is a kind of emotional storm. Right. एक storm जैसे negativity का emotions बढ़ने लगता है, right? No, you get into first you get into little bit of anger because of that breakup. Then that anger changes into hatred. That hatred changes into jealousy, bigger anger, and then you end up into depression. Okay. Because that emotional storm is going on at that time and you are unable to handle it, isn't it? Right. So how do you behave when you see a storm? You know, what is the best way to deal with the storm? You know, the best way is to wait till the storm. And start running at that time. Yes. That's basically what happens. No, the best way is to wait till the storms goes away, isn't it? क्योंकि हमारा तो उसके सामने कुछ चलता है नहीं, हमारा ताकत उसके सामने कुछ भी है नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्टॉर्म निकल जाने तक वेट कर सकते हैं। Right. Yes or no? Correct. So this is the first step you have to take. When these emotional storms are coming, just be quiet. थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत रखो। These things will happen. In breakups, this is very common. Let the emotional storm come, rise up on its own and goes down also. You know what Gurudev Shri Ravi Shankar ji says? That not a single emotion in human life stays more than 2.5 days with the same intensity. This is a big secret. Not a single emotion will stay in anybody's life for more than 2.5 days with the same intensity. मतलब हमें ये समझना है कि जो भी अभी हो रहा है मेरे अंदर, इतना हलचल मच चुका है, that is temporary. ये कुछ टाइम के लिए है, कुछ देर बाद ये अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी कम होने वाला है. That is very scientific.
you can't keep on cribbing with the same intensity on same subject. Even if sometimes somebody's near ones die or something happens, so initially the emotional flow is very high, but as the days passes away, then अपना मन शांत होने लगता है. Do you agree with me? Isn't it? तो अपने आप वो इमोशनल जो भी है एग्रीवेशन, स्टॉर्म ऑफ इमोशन, वो अपने आप सबसाइड होने लगता है एंड यू कम डाउन. My suggestion is that don't take any action in that peak of emotional storm. Absolutely. Most of the crimes happen when somebody takes action in the flow of that emotion. जब हम गुस्से में होते हैं बहुत ज्यादा, और तो वो गुस्सा हमें कंट्रोल नहीं होता, तो दूसरा हम क्या करते हैं, उस गुस्से को निकालने के लिए एक्शन में कुछ करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस अ रॉन्ग आउटपुट. व्हाट यू से? जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं, तो जो भी आप पहले तो आपका मन एंगर से भरा हुआ है, अशांत है, डिस्टर्ब है, और ऊपर से आप उसी फ्लो में कुछ एक्शन लोगे, तो उसका जो आउटपुट है वो बाद में आपको पछतावा ही देगा. Right. Exactly. Isn't it? तो क्राइम हैपेंस लाइक दैट ओनली. क्योंकि जो भी क्रिमिनल होता है ना, उसको अगर आप बाद में पूछो कि व्हाई यू डिड इट लाइक दैट, आपने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसे आप पूछो तो आपको आंसर सुनने पे बहुत मजा आएगा. वो बोलेगा कि नहीं, मैंने नहीं किया, वो हो गया. आउट ऑफ एंगर इट हैपेंड. I was not responsible for that. I have taken many courses in jails for prisoners. In Central Jail of Kolhapur, I have taken 2-3 batches for prisoners, and those people are really good people. They are not everyone is like angry all the time and doing something there. They all stay together, 70-80 people in one hall, and they share everything. They are cool people. And when you interact with them and you ask what happened to you, why you did like that, आपको क्या जेल में आने का मजा आता है क्या, क्यों किया आपने ऐसा, तो वो बोलते हैं नहीं, हमने नहीं किया, हमारे एंगर में हो गया. For that few minutes we couldn't control ourselves and it happened. Okay. The trick is to let the emotional storm subside. अपने आप उसको कम होने दो, मन को उस टाइम शांत रखो, फिर जो भी बाद में आप एक्शन लोगे शांत मन से, वो आपके लिए सही होगा. दैट इज द पॉइंट. हाँ. ओके, सो और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया कि बहुत से ऐसे स्पेसिफिकली मैंने यूथ में ऑब्जर्व किया है कि यूथ में, जैसे लाइक आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा डॉक्टर प्रमोद पाटिल के साथ, उन्होंने उधर एक पॉइंट रखा था कि यूथ को स्पेसिफिकली हमें ये सिखाया, हमें ये बताया जाता है कि कोई भी इमोशन होता है जैसे लाइक एंगर और एनीथिंग, उसे वो आना गलत है, पर एट द सेम टाइम हमें ये पता नहीं कि इसे हैंडल कैसे करें. फॉर एग्जांपल आप इसके बारे में बोल सकते हो किसी को जेलसी हो रही है वगैरह, तो या एनवी, उससे इंसान खुद को कैसे ये कर सकता है, हैंडल कर सकता है उस सिचुएशन में. उसे पता है कि वो गलत है, बट ही इज नॉट क्लियर हाउ टू हैंडल इट. व्हाट यू कैन टेल अबाउट इट? Very nice. See, these emotions now, they are very much connected to your body parts also. When you are specifically talking about jealousy, you'll observe if you are jealous, you feel some sensation in your stomach. हम मराठी में बोलते हैं ना, तुझ्या पोटात का दुखतंय माझी प्रगती. We say like that, right? So many times people say like that. So this jealousy is happening at the stomach area, and at the same time, if you observe, there is generosity also in the stomach area. मतलब क्या, एक ही कॉइन के दो साइड है. On one side there is jealousy, it is correct, but on another side there is generosity. उदारता भी वहीं पे है. सिर्फ हो क्या रहा है, हमारा फोकस निगेटिविटी पर है.
And simple trick is to, when you shift that focus, when you expand your mind, जैसे मान लो आपका भाई, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड तरक्की कर रहा है, तो आपको कैसे लगता है उनके लिए? You अच्छा feel लगा। happy and generous for them, yes or no? Right, right. From the Right. same area that emotion comes up. So simple trick is that feel belongingness with whichever person you are feeling jealous with. Suddenly that feeling of jealousy will turn into generosity. Okay. एक तो बात वो है वरना आपको एक खुद को समझना पड़ेगा that not every time you can be a winner, not every time you can be right. Sometimes there are others also right, sometimes there are going to be others also winners. या तो ये स्पोर्ट्समैनशिप वाला भाव चाहिए आपके अंदर, या तो जेनरोसिटी चाहिए टू एक्सेप्ट somebody else's victory. What do you say? तो हमारे अंदर के ही इमोशंस का ये खेल है, सिर्फ हमें समझना चाहिए कि ये इमोशंस कैसे हमें उल्लू बनाते हैं. दे आर एक्चुअली मेकिंग यू फूल. What happens if you get jealous? That person is not getting harmed. आपका एनर्जी डाउन हो रहा है. Absolutely. जेलस में आप तड़प रहे हो और आपको गुस्सा भी आ रहा है, एंड वो निगेटिविटी बढ़ा रहा है आपके अंदर की. Absolutely. और उससे होगा क्या? आपका इफेक्टिविटी, एफिशिएंसी सब कम होने लगेगा, क्योंकि दिमाग में जेलसी और एंगर है. Isn't it? So you can't deal such situation with that expression. तो आपको पहले तो वो इमोशंस पे फोकस करके उससे बाहर निकलना होगा, एंड दैट इज व्हाई वी सजेस्ट मेडिटेशंस एंड प्राणायामा, Right. because that is the only practical tool. Yes. Gurudev says if you really want to deal with all these emotions, you have to have something practically possible. सिर्फ ऐसे थियोरेटिकली बोलने से वो निकलेगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली आप थोड़ा प्राणायाम करोगे, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करोगे मेडिटेशंस के थ्रू, यू विल बी चैम्प. यू नो, जनरली होता क्या है, वी आर स्लेव्स ऑफ आवर माइंड. हमारा मन हमें खिलाता रहता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा प्राणायाम और मेडिटेशन सीखते हो ना, यू बिकम ओनर ऑफ योर ओन माइंड. So nothing can shake you. Are you getting this? Right. So nice one. Yeah. Well, it was nice. I know आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो को, आपको देख के बहुत कुछ सीखने मिला होगा. बट ये एक सिर्फ पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी लाने वाला हूँ मैं, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं. जब आपको पूरा वीडियो चाहिए, इसके 2 पार्ट नहीं चाहिए, तो मुझे कमेंट करो. 2 पार्ट सही लग रहे हैं तो वैसे बता. पर इस वीक में तो 2 ही पार्ट आने वाली इसकी. तो ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आई थिंक थर्सडे के आसपास आ जाएगा, देख लेते हैं. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो भाई, बहुत शेयर करना है आपको इसको, और सब्सक्राइब भी कर दो. ओके, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.